बट सर डोंट यू थिंक वो टाइमिंग जो थी यूएस की कि यहाँ पे एक तरफ ऑप्शन दूर हुआ है और जो भी ये हुआ है, और उसी समय इन मंथ्स टाइम आसिम मुनीर को वहां बुला रहे हैं. US, I think, is sending a US has always had special relationship with two countries. One is with Israel, और उसकी वजह इजराइल का बहुत ही स्ट्रांग लॉबी है वॉशिंगटन में. They own the banks, they own, so they have a very... All the Rothschild, all these guys. Pakistan is the other one, because Pakistan and US have had a love distanglement, then love, then distanglement, then love relationship for decades. Why? Began with this, they needed a post there. They'd created a Baghdad Pact, which had all the Islamic countries signing up. So Pakistan signed up to it because it's an Islamic country, right? Then they needed Pakistan when they wanted to sort out the Russians. जब उन्होंने रशिया ने invade किया था. Why are they sorting out the Russians? They're taking revenge for Vietnam. Because Vietnam में Rambo movie देखी है? तो उसमें Rambo का interrogation Russian colonel कर रहा है. Why? Because the Russians were sending their forces in Vietnam to basically help the Vietnamese fight the Americans. So they would give them weapons, this thing, that thing, training and all of that. Well, every country does it. जो mercenaries भी होते हैं उनके उन्होंने mercenaries भी भेजे थे. Every country does it. So the US has had a relationship with Pakistan where it has used Pakistan for fighting off the Soviet Union. और जैसे वो उनको भगाया, वो उन्होंने अपना कैंप वैम्प विड्रॉ करके सब आ गए. तो मुशर्रफ सही बोलता है कि हम we fought your war and now these terrorists are floating around here in Pakistan. Then again they required them and they have to go to Iraq because they needed their bases again. Then again they required when they had to go into Afghanistan. तो इनका पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप. इसलिए by the way, US will never want democracy in Pakistan. US, by the way, doesn't want democracy in any country. Pakistan जो US बोलेगा उसको करना ही पड़ेगा because it doesn't have its own center of gravity from an economic point of view. और पाकिस्तान के पास भी पैसे होते तो would have had a very different attitude. So US and Pakistan have a very special relationship and US will always show Pakistan that we are with you. You don't worry. तो ठीक है, इंडिया अपना चल रहा है ट्रेड वेड उनके साथ, बट तेरे को खाने पे बुला के चल तू आ, we'll give you that. Why? Because they also need मुनीर टू रिटेन पावर इन पाकिस्तान. अगर मेरा कैंडिडेट मैंने बिठाया है और वो कैंडिडेट को मैंने यकीन करना है कि वो पावर में रहेगा, सो आई हैव टू प्रॉप हिम अप. करेक्ट? आई हैव टू से लुक, आई एम गिविंग हिम मोर इंपॉर्टेंस देन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. आई एम गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू द आर्मी चीफ. तो मैसेज पाकिस्तान को क्या भेज रहा है वो? ये आर्मी चीफ इज योर राइट लीडर, नॉट योर प्राइम मिनिस्टर, नॉट योर प्रेसिडेंट. So the greatest democracy in the world is sending a message to Pakistan that a democratically elected leader is not who I will talk to. I will talk to the army chief so that your Maibap is actually the army chief. So explain to me, do they want democracy in Pakistan or not? Otherwise they should very clearly say that we will never talk to an army guy, we will only talk to an elected prime minister or president. Usko bhejo. So they want a regime. Any country which wants to hold sway in the world, पूरी दुनिया को अगर उसने कंट्रोल करना है, यूएस ने कंट्रोल करना है, चाइना ने कंट्रोल करना है, तो ऑब्वियसली दे वांट लीडर्स इन दोज कंट्रीज जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा और जो बोलेगा वो करेगा. मुनीर वाज कॉल्ड बिकॉज द यूएस वांट्स टू टेल पाकिस्तान तुम डेमोक्रेसी वगैरह छोड़ो, ये जो चीफ है ये चीफ चलाएगा तुम्हारी कंट्री, इसको हम देते रहेंगे एड शेड जो भी है तुम्हारा अगला IMF का वो कभी रुकेगा नहीं, वो आर्मी चलाएगी तुम्हारी कंट्री. बिकॉज देन दे कंट्रोल पाकिस्तान. They can do what they want in Pakistan. मतलब what US is doing in Pakistan, if it did in any other first world country, it would be like, a sacrilege. You are entering into the country, तुम्हारे special forces घुस रहे हैं उसमें, वो ओसामा बिन को पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, उसको ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसको मारना है मार रहे हैं. कई बार मॉस्क में मार के 30-40 औरतों बच्चों को मार दिया, वो सॉरी बोल के निकल गए. Their operators have shot people. There was a famous case when one of their, Jason Bourne kind of a guy went and shot up 4-5 people. He got away by paying blood money or whatever. This cannot be allowed in any country. Can you imagine a Russian going into Britain and killing people, which they did? And look at the furor it created. They told their embassy, nikalo apne sare bande yahan se. Diplomatic ties were cut off and all of that stuff. Pakistan cannot do any of that. And in this region, इस पूरे इलाके में और कोई कंट्री नहीं है जहां पे यूएस अपना बेस बना सकता है.
अगर आपने सोवियत यूनियन से नीचे और चाइना के साथ, सोवियत यूनियन आपका दुश्मन है, आई मीन अर्स्टवाइल, नाउ रशिया, चाइना आपका दुश्मन है, अफगानिस्तान इज बीटन यू ट्वाइस, नॉट वंस एंड ट्वाइस, ईरान आपका दुश्मन है, विच इज द कंट्री विच इज लेफ्ट? इंडिया आपको इंडिया विल कॉल ऑन इट्स टर्म्स। इंडिया को बोला था इन्होंने अपना गल्फ वॉर में कि आप भी भेजो अपनी फौज, इंडिया से नो वी विल नॉट सेंड आर्मी। टोकन फर्स्ट गल्फ वॉर वी अलाउड सम रिफ्यूलिंग टू हैपन as a token. Why? Because we have relationship with with Iraq. India has independent relationship with Iraq and with Iran. Matter of fact, it's a very interesting anecdote, factually true, that when Iraq-Iran war was going on, at that point of time, हिंदुस्तान के मिलिट्री एकेडमीज में एनडीए और आईएमए में दोनों कंट्री के ऑफिसर्स आते थे ट्रेनिंग के लिए। तो वी वर ट्रेनिंग इराकी ऑफिसर्स एंड ईरानी ऑफिसर्स इन टू ऑफ आवर एकेडमीज, बिकॉज वी हैव इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद बोथ। तो जस्ट बिकॉज यूएस की दुश्मनी है इराक के साथ, तो मैं क्यों उससे दुश्मनी लूं? मेरा तो उससे हजारों साल का रिलेशनशिप यूएस के एग्जिस्टेंस से पहले चल रहा है। आपके लिटरेचर में काबुली वाला इज अ स्टोरी, काबुली वाला कम्स फ्रॉम काबुल। सो अफगानिस्तान के साथ आपका रिलेशनशिप इज कंटिन्यूइंग फॉर सेंचुरीज, दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू। तो जस्ट बिकॉज यूएस की दुश्मनी है उनसे, इसलिए हम भी उनके, इट डजंट मेक सेंस। सो इंडिया विल आस्क क्वेश्चंस, इट विल नॉट ब्लाइंडली फॉलो। अगर यूएस बोलेगा कि तुम हमारे जहाज खरीदो, बोले नहीं यार हमारे को रफाइल पसंद है और हमारे सारे जहाज तुमसे नहीं खरीदे हैं, क्योंकि तुम साले ना जिस दिन लड़ाई लगेगी अगर तुम स्पेयर पार्ट नहीं दोगे हमें, तो अपने को ऑप्शन हमने थोड़े ओपन रखने, थोड़े फ्रांस से लेंगे, थोड़े यूरो फाइटर लेंगे, थोड़े सी हैरियर्स लेंगे यूके से, ठीक है, अपना लॉजिस्टिकल लोचा थोड़ा बढ़ेगा, बट वी हैव ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। यू कैनॉट प्रेस अस इन द बैक एंड से हम स्पेयर पार्ट नहीं देंगे तो यू कैन, जैसे पाकिस्तान को यूएस स्पेयर पार्ट, दैट इज वाई पाकिस्तान इज ऑल्सो डी रिस्किंग बाई गोइंग टू चाइना, कि ठीक है हम भी सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालेंगे, थोड़े बहुत यहाँ से लेंगे, थोड़े बहुत यहाँ से लेंगे। सो दैट इज द स्ट्रेटेजिक बैलेंस। सो यूएस का और कोई ऑप्शन नहीं है इस इलाके में, अगर उसने अपना एक फुटप्रिंट बेस रखना है, then Pakistan is the only territory which makes sense for them, and that's the reason why they'll call Munir, give him a lunch, ये वो। उसमें ना मुनीर is fooling himself कि I have become some खास यार, भी ट्रम्प उसको भी पता है कि मेरी औकात क्या है, और ट्रम्प भी उसको बता रहा है कि बॉस तेरे को मैंने उधर इसलिए बिठाया है कि यू हैव टू डू एग्जैक्टली व्हाट आई टेल यू टू डू, तो आज ऊंचा नहीं करने का, जो तेरे को बोलते हैं तो वो एग्जैक्टली वो कर, दैट्स द रीजन। तो उसमें वी शुड नॉट स्टार्ट रीडिंग इनटू यार मुनीर को बुलाया, अपने पीएम को नहीं बुलाया, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। यू आर इक्वेटिंग टू कंप्लीटली अनरिलेटेड थिंग्स टू ईच अदर।